دشمن مصطفیٰ خیریت ہی نہیں مل نہیں پائے گی تم کو راحت کہیں. تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا, تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا, اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا, اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا. بس غلام ان کے مسرور ہیں, یہ وہابی تو لنگور. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول ہے. سامعین اکرام, یہ ایک دیوبندی عالم ہے, اس کا نمبر کسی نے دیا تھا اور اس کا نام ابو بکر ہے, اور شیخ جلال الدین چشتی صاحب کا کال نہیں اٹھا رہا تھا تو انہوں نے مجھے لائن پر لے کر کے اس سے بات چیت شروع کی. تو دیکھیے کہ بات شروع ہوئی تھی اصلاح کے طور پر کہ آپ ہماری اصلاح کریں یا ہم آپ کی اصلاح, لیکن اینڈ میں جا کر کے یہ ایسا بوکھلا گیا کہ اپنے منہ سے ایسی ایسی باتیں اگلنے لگا کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک واقعہ پہ اینڈ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ غیر قوم کے ساتھ صحابہ کو بھیجا اور وہ وہاں گئے تو انہوں نے ان صحابیوں کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو یہ کہتا ہے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور نہ بھیجتے. اب دیکھیے یہ کال ان کا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا تو حضور نے ان کو بھیج دیا تو شہید ہو گئے. یہ کال ان کا ہے, صحابی کا نہیں ہے. کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا, نہ کسی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو وہاں بھیج دیا, وہ قتل ہو گئے تو آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ گستاخی بھرے جملے ہیں. اور صحابہ اکرام ہمیشہ جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر ایک چیز معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ بخاری کی ہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک میدان میں آئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا, اور صحابہ کی لاکھوں کی تعداد ہے, اور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے صحابہ تمہیں پتہ آج کون سا دن ہے, جبکہ اس دن قربانی کی گئی. سب کو پتہ تھا کہ عید الاضحیٰ کا ٹائم ہے, کہ بقرعید کا دن ہے اور سب نے قربانی کیا, پھر بھی اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے. تو صحابہ کی جماعت نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. پھر اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے, تو پھر صحابہ کی جماعت نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اللہ بھی جانتا ہے, اور اللہ کی عطا سے رسول بھی جانتے ہیں. تو یہ صحابی کا ہوا عقیدہ, اور کسی صحابی نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا اللہ کے رسول کے تعلق سے کہ آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو وہ نہیں پتا. یہ گستاخی بھرے جملے ہیں, اور یہ گستاخی کون کرتا ہے؟ وہابی دیوبندی نجدی خنزیر کے بچے. تو سامعین اکرام یہ ریکارڈنگ آپ سنیں اور دیکھیں کہ اینڈ میں یہ ایسا بوکھلایا, ایسا پاگل ہوا کہ ایک آیت, کیونکہ محدث کی جماعت نے کہا ہے نا کہ جاہل کے پاس اگر ایک دلیل ہو اور تمہاری 100 دلیلوں کو وہ رد کرے گا. اب دیکھیں میں نے اس کے سامنے حدیث بھی پیش کی, آیت بھی پیش کی, لیکن یہ ایک قرآن کی آیت کو جو ذاتی پہ دلالت کرتی ہے عطائی پہ نہیں, اس کو پکڑ کے بیٹھا ہے, اور جب میں اس کے سامنے دلیلوں کے انبار لگا رہا ہوں اس کو نکار رہا ہے. تو یہ ہے جاہل قوم دیوبندی وہابی. تو ان سے اپنے عقیدے کو بچائیں اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور دیکھیں کتنا گندا عقیدہ لے کر کے یہ داڑھی بڑھا کے اور ٹوپی پہن کے پاجامہ ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر کے تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اور آپ لوگ خوشی خوشی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جب بھی وہابی دیوبندی اگر آپ کے پاس آئے تو جوتوں سے مارو, سالوں کو جوتوں سے مار کے بھگاؤ, یہ اسی کے لائق ہیں. اور دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہاں جناب ابو بکر صاحب, جی بولیے. آج کل کہاں قیام فرما رہے ہیں؟ میں تو ابھی ادھر ہوں, ہمارے علاقے میں. اچھا, یاتمال ضلع؟ جی یاتمال میں یا ناندیڑ میں؟ یوتمال. یوتمال میں. اچھا جناب والا یہ بتائیے, رمضان میں آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا ملاقات کریں گے اسلام پور آ کر, تو آپ آئے نہیں, اور اس کے بعد اچھا علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے, ذرا واضح فرما دیجیے. مطلب علم غیب کا آپ قائل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا, یہ بات آپ مانتے ہیں یا اس کا منکر ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں.
अच्छा, जी, हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? हाँ, हमारे अकाबिर जो है उनकी बात मानते हैं। तो आपके अकाबिरीन ने क्या लिखा है, जरा कुछ वजाहत से फरमा दीजिए, और आपके अकाबिरीन की बात कुरान और हदीस से साबित कीजिए। फिलहाल तो दावा आपका है कि आप इल्म गैब मानते हैं, तो आप दलाइल पेश कीजिए। इल्म गैब के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह जिन के अंदर अल्लाह फरमाता है, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह ताला फरमाता है कि आलिमुल गैब है अल्लाह ताला, गायब का जानने वाला, किसी को अपने गायब की इत्तला फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, किसी पर अल्लाह ताला जाहिर नहीं करता, अल्लाह ताला गायब किसी पर जाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों को। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, इल्ला, तो इल्ला जो इस्तिस्ना है पहले लफ्ज़ के खिलाफ, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु के बीच में हरूफ इस्तिस्ना आता है, यानी पहले किसी को जाहिर नहीं करता मगर के बाद जो लफ्ज है उसके बारे में इस बात होता है ना जी। लफ्ज इस्तिस्ना इल्ला, तो इस्तिस्ना के जरिए से पहले लफ्ज का, इस्तिस्ना से पहले वाले जुमला का इनकार और बाद वाले जुमला का इस बात होता है इस्तिस्ना के जरिए से ना। अल्लाह ताला किसी पर जाहिर नहीं करता मगर नबियों पर जाहिर करता है, पसंदीदा रसूलों पर अल्लाह ताला गायब जाहिर फरमा देता है, गायब देता है। तो ये कुरान की आयत से साबित हुआ और बहुत सारे दलाइल से साबित हुआ, बहुत सारे हदीस पाक में भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारे रुकू भी मुझसे पोशीदा नहीं है और तुम्हारे खुशू भी मुझसे पोशीदा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस से ये साबित होता है खुशू दिल के अहवाल का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की कैफियत को जानते हैं। और कौन कहाँ मरेगा, जैसा आप उलूम खमसा के बारे में आप लोग बताते हैं, उलूम खमसा कुरान की आयत से साबित है, सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तो ये उलूम खमसा के बारे में आप लोग बहुत सख्ती से इसको प्रचार करते हैं, कहते हैं कि देखो ये 5 चीज़ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन हदीस से साबित है ये 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल अबू लहब कहाँ मरेगा, उतबा साहिबा कहाँ मरेगा, अबू जहल कहाँ मरेगा, कुफ्फार के बड़े बड़े सरदारान कहाँ कहाँ मरेंगे, सबके निशानदेही मरने से पहले बता दिया। कौन कहाँ मरेंगे अल्लाह के नबी बता रहे हैं। यानी उस आयत का ये तर्जुमा है कि अल्लाह के बताए बगैर कोई नहीं जानता। अल्लाह ये 5 उलूम खमसा भी अल्लाह जिसको चाहे अल्लाह ताला दे दे, तो अल्लाह ताला ने नबी को दिया। और आप बोल रहे हैं अपने अकाबिरीन की बात, आपके अकाबिरीन की किताब से भी साबित करूंगा, इल्म गैब आपके अकाबिरीन भी मानते थे। इल्म गैब कुल्ली तौर पर नहीं मानते, जुज़ी तौर पर वो जो अल्लाह ताला जिस पर जाहिर कर दे वो तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब, लेकिन कुल्ली तौर पर वो ये बात तो नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बाज़ उलूम गैबिया आप कहते हैं, बाज़ कुल्ली का मतलब क्या है जी? मुकम्मल तौर पर जैसे अल्लाह ताला को इल्म है वैसे मुकम्मल तौर पर हर चीज का इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया गया। आलिमुल गैब किसको कहेंगे? आलिमुल गैब, लफ्ज़ आलिमुल गैब का इतलाक नहीं करा रहे हैं। बात यह है कि उलूम गैबिया नबी को, एक तो लफ्ज़ आलिमुल गैब यह अल्लाह का नाम है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आलिमुल गैब अल्लाह का नाम है, और अल्लाह के नाम के बारे में यह कायदा है कि अल्लाह के बाज़ नाम खास अल्लाह ताला के लिए है और वो नाम गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, और कुछ नाम ऐसे भी हैं
जो गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसा रऊफुर रहीम, रऊफुर रहीम, इन्नल्लाह रऊफुर रहीम, अल्लाह रऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह रऊफुर रहीम है। लेकिन सूरह तौबा के आखिर में अल्लाह ताला नबी के लिए फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, नबी के लिए इस्तेमाल, वहाँ ताकीद के साथ, इन्ना ताकीद के साथ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, और यहाँ नबी के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और करीम अल्लाह का नाम है, फरिश्ते जिब्रील के लिए भी इस्तेमाल हुआ, नबी के लिए इस्तेमाल हुआ। तो लेकिन आलिमुल गैब जब अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने, सहाबा इकराम ने नबी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, किसी और मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो हम लफ्ज़ आलिमुल गैब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह के लिए खास है आलिमुल गैब। लेकिन उलूम गैबिया अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। ये हमारा दावा है। मैं आलिमुल गैब का मैं सवाल नहीं पूछा था, मैं शुरू में जो पूछा था कि इल्म गैब नबी को है, आपने कहा नहीं। कुरान तो कह रहा है ला तालमून नहनु नालमून के जिन ये 11वें पारे में वमिम्मन हवलकुम मिनल अअराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलल निफाक ला तालमून नहनु नालम, जिनको आप नहीं जानते हम उन्हें जानते। फिर इल्म गैब कहाँ से साबित हुआ? अच्छा, तो ये जहाँ जहाँ इनकार है, दो बातें हैं, एक इनकार की भी आयतें हैं, इस बात की भी आयतें हैं। तो अगर इनकार की आयत को आप मान रहे हैं तो इस बात की आयत का इनकार हो रहा है, इस बात की आयत मानते हैं तो इनकार की आयत का इनकार हो रहा है। तो इस बात में उलमा इकराम का, सुनिए, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इसमें कौल है, इसमें मुफस्सिरीन की राय ये है कि जहाँ इनकार है वहाँ से जाती उलूम का इनकार है, जाती उलूम का इनकार है, और जहाँ इस बात है वहाँ अताई उलूम की इस बात है। नबी को अल्लाह ने अता किया, अल्लाह की अता से नबी को इल्म है। और जहाँ पर इनकार है वहाँ जाती तौर पर अल्लाह के बताए बगैर मैं नहीं जानता, नबी ने जहाँ फरमाया मैं नहीं जानता, उसका मतलब यही है कि अल्लाह के बताए बगैर नहीं जानता। अल्लाह बताए तो मा काना व मा यकून का इल्म अल्लाह ताला मुझे दिया है। हाँ, वो नहीं जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन पर मुतला किया गया, वो तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना गैब का इल्म है जितना कि आपको दिया गया। अल्लाह ताला ने जितना किया उसका तो हम भी इनकार नहीं कर रहे ना। तो इल्म गैब कुल्ली का जिसके लिए अल्लाह जो इल्म अल्लाह ताला अपने लिए कह रहे हैं। मौलवी साहब जरा सोच समझ के कहिए, क्योंकि अगर आप मानते हैं तो भी आप फंस जाएंगे, अगर इनका बात भी मानते हैं, अल्लाह के बताने से मानते हैं तो भी फंस जाएंगे। क्योंकि तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये इल्म गायब अल्लाह के सिफात खासा है, किसी मखलूक के लिए अगर कोई माने, थोड़ा माने या ज्यादा, जाती माने या अताई, बहरहाल शिरक लाजिम है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने जो दलील पेश किए उसके ऊपर कुरान करीम की एक वाज़ेह आयत है जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुल ला यालमु, ये कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब, खुद फरमाया जा रहा है कि भाई हम मुझे इल्म गैब नहीं, और बकरत आयतें हैं कुल ला वला अक़ूलु लकुम कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी, पूरा पढ़िए, फिर से पढ़िए, पूरी आयत पढ़िए। पूरी आयत ही तो पढ़ रहे हैं, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। उसके बाद सूरह अनाम की 50वीं आयत है, वाला उसके बाद पढ़िए ना, एक दो जुमला और पढ़िए जी। वला कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, है ना? हाँ, लस्तक्सरतु मिनल खैर, वला कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, ये आयत है। तो इस आयत से आप दलील दे रहे हैं नबी को गायब नहीं है ना? आप गौर से जरा सुनिए मौलवी साहब, ये आपने मगरिब से पहले आपको कॉल किया था तो आपने बताया था कि मुनाजरा नहीं हो रहा है, इफ़हाम और तफ़हीम होंगे, ठीक है ना? तो आपको कोई भी, ना हम हरा रहे ना आप मुझे जिता रहे, कोई भी बात नहीं, बस हम मुज़ाकरा कर रहे हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो, ठीक है ना?
अबू बकर जी साहब। जी जी बिल्कुल। हाँ, मोहब्बत के अंदाज में, और ये हमारा ये जी, मोहब्बताना पैगाम हमेशा जारी रहेगा, ठीक है। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो आप जो ये आयत पढ़े हैं, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, हाँ अगर मैं गायब जानता बहुत खैर हासिल कर लेता। ऊपर से पूरी आयत पढ़ी है मैंने, कुल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, ये वला आलमुल गैब ये मैंने आपको दलील के तौर पर पेश हाँ, किया। तो अल्लाह फरमाने कि आप तो इस आयत को मानेंगे तो जहां पर है कि मैंने नबी को गायब दिया, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा, उस आयत को भी मानना पड़ेगा। तो उस आयत को भी मानना और इस आयत को भी मानना, अगर एक आयत का भी आप इनकार करेंगे तो ईमान वाले नहीं रहेंगे। तो ये दोनों आयत को अगर तत्वीक करना तो इल्म अताई और जाती फर्क करना पड़ेगा। अताई, अल्लाह के अता किए बगैर मैं गायब नहीं जानता। अगर मैं खुद से गायब जानता होता, खुद से जाती तौर पर, ये आपकी किताब से भी, मैं आपकी किताब से दलील दे रहा हूँ। मैं किताब का आपकी जो किताबें हैं मेरे पास हवाला मौजूद है। ये जो जाती और अताई का फर्क है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक किताब है आपके। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मदारिजुन नबुवा, हाँ, वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मदारिजुन नबुवा जी। मैं आपको इससे पहले भी ये बताया आपको कि हम जो है हर गैब की नफी मुतलकन नहीं मुराद लेते। तो हर गैब का अगर मुतलकन इनकार नहीं करते, आप थोड़ा मानते हैं, इसका मतलब थोड़ा गैब आप मानते हैं, है ना। मनसब रिसालत के लिए सुनिए तो सही, मनसब रिसालत के लिए जिस कदर जो है इल्म गैब की यानी इल्म गैब की जरूरत होती है, इल्म गैब की खबरों की और गैब की चीजों का इल्म होना किसी रसूल के जितना जरूरी होता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला मिन जानिबिल्लाह वही के जरिए दे दिया करते हैं जी। तो इसका मतलब तो आप मनसब नबुवत के लिए गायब को जरूरी समझते हैं। तो इस्माइल दहलवी जो लिखे हैं कि जाती अल्लाह ताला की सिफात खासा है, किसी मखलूक को इल्म गायब हासिल नहीं। अगर कोई मखलूक के लिए इल्म गायब माने तो वो बहरहाल शिरक है, चाहे जात। ये देखिए, तो वो इल्म गैब कुल्ली की बात चल रही है, वो जो उन्होंने कहा है वो इल्म गैब कुल्ली की बात है। यहाँ पर जुज़ी कुल्ली हर किस्म के गायब का इल्म अल्लाह के लिए खास है। किसी के लिए अकीदा ना रखा जाए कि आपको इल्म गायब था, ये अकीदा रखा जाए आपको इल्म गायब था, शिरक है। ये फतावाए रशीदिया 104 नंबर पेज में आप इस हिसाब से तो फिर आप मुशरिक हो जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास वो किताब नहीं है, मैं उस किताब में देखूंगा। हाँ सुनिए, मैं उस किताब वो पेज मैं आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ जनाब। आप मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुनिए, अभी आपको भेज रहा हूँ, आप पढ़कर सुनाए। मैं बोल रहा हूँ ईमान का और फतावाए रशीदिया की इबारत आपको भेज रहा हूँ। अगर आप थोड़ा मान रहे हैं तो भी उलमा देवबंद के हिसाब से आप मुशरिक हैं। वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको साइड में रखिए आप। नहीं, आप उनके साइड में, जब वो आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप मैं बरेलवी इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैह की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, आप अशरफ अली थानवी की और उलमा देवबंद की आप नुमाइंदा बनकर आए हैं, तो उनको साइड में नहीं रख सकते ना। हमारे बुजुर्ग को हम साइड में कैसे रखेंगे? हमारे सर के ताज है, उनको सर पे रखेंगे। आपके बुजुर्ग हैं तो आप अपने सर पे रखेंगे अपने बुजुर्गों के नाम। ये पढ़िए अबू बकर साहब, सुनिए, मैं आपको भेजा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जी मैं देख रहा हूँ आपको जी, सुन सही, आप सुनिए। हक यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करता है, बिलाशुबा उसके अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। हाँ, ये अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के ताल्लुक रखे या
मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म ذاتی समझा जाए या अल्लाह का अता किया हुआ हो, हर सूरत में शिरकी अकीदा है। ये हर उसके ऊपर सूरत में। पढ़िए आप, उसके ऊपर जो बात लिखी वो तो पढ़िए। ऊपर क्या लिखा, ऊपर पढ़ूं मैं? पढ़िए। हाँ, ऊपर भी पढ़ रहा हूँ, आपके कहने के मुताबिक मैं ऊपर भी पढ़ रहा हूँ। रुकिए। बीमारी व सेहत, फराखी व तंगी, मौत व हयात और गम व मुसर्रत, उसको इन सब की हर वक्त खबर रहती है। जो बात मेरी जुबान से निकलती है वो उसे सुन लेता है और मेरे दिल के ख्यालात और तसव्वुरात से वाकिफ रहता है। इन तमाम बातों से, यानी मखलूक के बारे में अगर ऐसा एतकाद रखे तो वो इन तमाम बातों से शिरक साबित हो जाता है। ये शिरक फिल इल्म है, यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करता है। बिना शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। हाँ, ये अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के ताल्लुक से रखे या मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म ذاتی समझा जाए या अल्लाह का अता किया हो, हर सूरत शिरकी अकीदा है। ये एक इबारत हुई। और दूसरे इबारत में ऊपर से पूरी बात तो साबित तो हो गई, वाज़ेह तो हो गई, यानी अल्लाह जैसा इल्म गैरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला जैसा इल्म साबित करना तो बिल्कुल नहीं। इल्म का ये अल्लाह के जैसा एक जुज के बारे में अलग बताया गया है। चाहे आप थोड़ा एक टॉपिक पर भी, एक चीज के बारे में भी अगर गायब के तस्वुर करते हैं नबी के बारे में, ये देखिए, ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था। ये फतवा रशीदिया में खुलासा कर दिया है। फतवा रशीदिया के देखिए 104 नंबर पेज है फतवा रशीदिया। ये अकीदा आपको आप पढ़िए। ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था सरीह शिरक है। तो आप कैसे बचेंगे शिरक से? शिरक से बचना है तो फिर बरेलवी बनना पड़ेगा। देवबंदी रहेंगे तो देवबंदियों के ऐसे बचने से आप मुशरिक हो जाएंगे। नहीं, क्यों होंगे मुशरिक? आपकी समझ का जहाँ मुतलकन बताया गया है, ये नहीं कि जुजी और अल्लाह के जैसा, अल्लाह के बराबर तो हम नहीं मानते, कोई नहीं मानते। हाँ तो वो भी तो हम भी तो नहीं मानते। नहीं, थोड़ा या ज्यादा हर सूरत मुशरिक है, हर सूरत शिरक लाजिम आता है। हर सूरत नहीं, आप ऊपर से जो बात पढ़े, अल्लाह जैसा इल्म है यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, उसके ऊपर जो लाइन लिखी है वो पढ़िए ना आप। यानी हक ताला, ये शिरक फिल इल्म है, यानी हक ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, बिला शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। बिल्कुल सही तो बात है, इसमें क्या गलत बात है? नबी को अल्लाह ने अबू जहल के मौत की जगह बताया। नबी को अल्लाह जैसे नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने जो बात लिखी है, क्या लिखी है? यानी हक ताला जैसे इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, बिला शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। आप ये मानते कि नहीं मानते? वो तक़वियतुल ईमान फतवा रशीदिया में क्या लिखे हैं वो पढ़िए जरा। क्या लिखे? फतवा रशीदिया में लिखा है, फतवा रशीदिया में लिखा है, ये नीचे की जो इबारत है, ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गायब था, सरीह शिरक है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या कहते हैं उसको, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही हदीस है बुखारी शरीफ की। क्या है सही हदीस? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब व हुवा यक़ूलु ला यअलमुल गैब इल्ला अल्लाह। बुखारी शरीफ। तो इन तमाम अहादीस से फिर उस आयत को आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। इस आयत का फिर इनकार करेंगे। मैंने आपको मारिफुल कुरान का एक सफ़ा भेजा है, वो देखिए। हाँ, मारिफुल कुरान का आपको मैंने एक सफ़ा भेजा है, जो उसमें हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस्तिस्ना का उस सफियाना शुबा का ये जवाब है कि इल्म गैब कुल्ली की नफी से हर गैब की नफी मुतलकन मुराद नहीं, बल्कि मनसब रिसालत के लिए जिस कदर इल्म गैब की खबरों और गैब की चीज़ों का इल्म
किसी रसूल को देना जरूरी है, वो उसको उनको मिन जानिबिल्लाह बजरिया वही दे दिया आप जाता है। यहाँ पर तक़वियतुल ईमान में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है, तक़वियतुल ईमान में बिल्कुल साफ तौर पर थोड़ा भी इल्म गायब माना जाए, थोड़ा या ज्यादा, लफ्ज थोड़ा है, थोड़ा की बात नहीं, थोड़े की बात लिखी हुई नहीं है, आप बताइए। इल्म गायब अगर कम माने तो भी मुशरिक होता है, ज्यादा माने तो भी मुशरिक होता है। हेलो 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 दोनों जने जरा खामोश रहिए। हजरत ने एक बुखारी शरीफ पेश की अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हाँ कि जो ये कहे कि हुजूर कल के बारे में जानते हैं वो झूठा है। जी जी, तो अब ये मुझे बताइए कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल से पूछ रही हैं कि ऐ नबी पाक ये बताइए कि सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा मुलाकात करेंगी। जी, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है और आप अम्मी आयशा पूछ रही हैं कि ऐ मेरे प्यारे शौहर ये बताइए कि सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा मुलाकात करेंगी। तो ये तो कल की बात खुद ही पूछ रही हैं आप। अच्छा सुनिए, पूछ रही हैं कि सबसे पहले आपसे, सुनिए पहले बात सुनिए। अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछ रही हैं कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा मुलाकात करेंगे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके हाथ सबसे सखी होंगे, लंबे होंगे। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला सबके हाथ नापना शुरू करती हैं। तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सबसे पहले इंतकाल होता है और वो खैरात और सदका करने में सखी थी। तो हाथ लंबे से मुराद सदका करने वाली, खैरात करने वाली। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे पहले हजरत ज़ैनब ने जाकर के मुलाकात की, किससे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो ये कल की बात जो कल होने वाली है, और एक तरफ अम्मी आयशा कह रही है कि जो ये कहे कि नबी कल के बारे में जानते थे वो झूठा है। तो अम्मी आयशा कल के बारे में खुद पूछ रही हैं। तो फिर दोनों हदीस टकरा गई, दोनों बुखारी की हदीस है, कैसे नहीं टकरा रही है? जो अम्मी आयशा कल के बारे में पूछ रही है ना, हाँ तो कोई टकराव नहीं, हदीस में कोई टकराव नहीं है। कैसे बताइए फिर ये अम्मी आयशा कल के बारे में खुद क्यों पूछ रही हैं? कल के बारे में खुद पूछ रही हैं अल्लाह के नबी, ठीक है, आपसे आकर कौन मिलेगा? तो वो अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया आप उनको। क्या अरे जनाब, कौन सी आयत में आया वो? वही कहाँ आई? कौन सी आयत में आया वो? क्या वही के जरिए अल्लाह ने बताया, वो कहाँ आया? कौन सी आयत में आया? हर वही जो है तो अरे जनाबे मन सुनिए, शाह अब्दुल सुनिए मेरी बात। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बताइए आप। अरे हजरत सुनिए ना, हजरत सुनिए, अभी तक आपकी सुन रहे थे, आप हमारी तो सुनिए। आप नहीं, मुझे पूरी वजाहत तो करने दीजिए। आपने कहा वही के जरिए बताया। अरे एक मिनट रुकिए, आपने कहा वही के जरिए बताया। अरे यार फिर बोलने नहीं दे रहे। आपने कहा वही के जरिए बताया, आपने कहा वही के जरिए बताया। सुनिए तो सही, आपने कहा वही के जरिए बताया। तो अम्मी आयशा कल की बात को पूछ रही हैं, खुद पूछ रही हैं, और इस हदीस में कहा कि जो ये कहे हुजूर कल के बारे में जानते हैं तो वो झूठा है। तो आप इसकी नफी नहीं करेंगे? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी नफी कर दी कि यहाँ से जाती और अताई मुराद है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो पूछा, यहाँ से जाती तौर पर अगर कोई ये कहे कि नबी खुद से जानते हैं तो वो झूठा है। अताई इल्म गैब की खुद नफी कर रही हैं अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये पूछ के कि कल आपसे सबसे पहले कौन सी जोजा मुलाकात करेगी जाकर। आपने क्या कहा कि एक चीज और बता दूं, एक मिनट रुक जाइए, एक चीज और बता दूं। एक तो ये हदीस आपके सामने मैंने पेश कर दी। दूसरी हदीस आपने कहा कौन से हदीस में, कौन सी कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि आपने कहा वही आई, वही आई वही के जरिए। तो इस हदीस में तो उसका जिक्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल वही के जरिए बता देते हैं। हाँ तो आप कह रहे हैं ना कि वही, ना ही इसकी शरह में मुहद्दिस ने लिखा है। आप अपनी तरफ से कैसे पेश कर सकते हैं? वही की किसमें आप बताइए। हाँ, अब ये आपने सही बात पूछी। अब मुझे ये बताइए कि माँ काना बमा यकुन का माना क्या होता है? वो नहीं कह रहा मैं आपको, आपने वही बता रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ। माँ काना बमा यकुन का माना क्या होता है? इब्तिदाए खल्क से इब्तिदाए खल्क तक,
जो चीज हो चुकी, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात, आप तो अपनी बात सुना रहे हैं, आप अरे एक मिनट सुनिए तो सही, वही की कितनी किस्में होते वही तो बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। माँ काना वमा यकुन का माना क्या होता है? इब्तिदाए खल्क से ले इब्तिदाए खल्क तक, मतलब जो चीज हो चुकी और जो चीज होने वाली है, ठीक है? तो इसको अताई कुल्ली, माँ काना वमा यकुन को अताई कुल्ली इल्म गैब का आप तसव्वुर करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने आपको एक जो सवाल किया, उसका जवाब ही नहीं दे रहा है। इसी में उसका जवाब है। अब सुनिए, बुखारी की ही हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसी में खुलासा हो जाएगा। अरे सुनिए ना, इसी में खुलासा हो जाएगा। आपने ये बात छेड़ के खुद फंस गए आप, अब इसी में खुलासा हो जाएगा। जब आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आपने ये कहा कि वही की कितनी किस्में हैं, यार बोलने नहीं दे रहे, सुनने के लिए तैयारी, आप बोलने ही नहीं दे रहे। आपने ये कहा कि वही की कितनी किस्में हैं, यही पूछा ना आपने। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वही की कितनी किस्में हैं, अल्लाह वही के जरिए बता देता था, तो तक़वियतुल ईमान के अंदर जो इबारत लिखी है, इस इबारत से तो आप मुशरिक साबित हो जाएंगे। क्यों साबित होंगे? कहाँ? क्योंकि आपके अकाबिर ने लिखा है, सुनिए, आपके अकाबिर ने लिखा है कि अगर उसका ये भी अकीदा हो कि अल्लाह ने उनको बताया है, अगर उसका ये भी अकीदा हो, मादा सुनिए ना, थोड़ा तसल्ली से सुनिए ना, अगर उसका ये भी अकीदा हो कि अल्लाह ने बताया है, अब आपने वही की जिक्र छेड़ी, वही तो आप कह रहे हैं वही के जरिए बताया, और वो कह रहा है कि उसका ये भी अकीदा हो कि अल्लाह ने बताया, तो भी वो शिर्क से खाली नहीं है। नहीं, क्या अकीदा है? तक़वियतुल ईमान में जी, तक़वियतुल ईमान की बात तो पढ़ रहा हूँ आपके साथ में कि ये इल्म ताला जैसे इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना क्या शुबा, इस अकीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। आगे पढ़िए। हाँ, और ये अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के मुतालिक रखिए या मुकर्रब के मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उसका ये इल्म ज़ाती समझा जाए या अल्लाह का अता समझा जाए। हाँ, आपने कहा वही के जरिए बताया, तो अता किया हुआ भी मुशरिक है आप तो, फिर अता भी आप तो कैसे बोल सकते हैं वही किसी की तरफ होती है? हाँ तो बिल्कुल, आप तो अगर अल्लाह ने अता भी किया, सुनिए, अम्मी आयशा ने एक सवाल किया अल्लाह के रसूल से, सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा मिलेगी? आप कह रहे वही के जरिए बता दिया, तो आपका अकीदा हो गया कि वही के जरिए बता दिया, तो बताओ, और भी तो मुश्किल साबित हो रहे हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, जलालुद्दीन साहब एक हदीस और पेश करने दीजिए, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नहीं, आप बोल लीजिए। पहले अबू बकर साहब को बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। इंसान मुशरिक हो जाता है, और ये अकीदा किसी के मुतालिक भी हो, किसी बड़े इंसान के मुतालिक, किसी के मुतालिक भी हो, फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म ज़ाती समझा जाए, अल्लाह का अता किया हुआ समझा जाए, या अल्लाह जैसे इल्म ज़ाती समझा जाए या अल्लाह का अता किया हुआ समझा जाए, अल्लाह इतना इल्म किसी को अता क्यों करेंगे? अरे भाई, वो मिसाल देके बताया ऊपर जो बताया, अबू बकर साहब सुनिए, ऊपर जो जितनी मिसाल देके बताया कि मैं फला किस जगह पे मैं हूँ, मेरे दिल पे क्या गुजर रहा है, ये सब अगर किसी को मालूम हो तो ये अल्लाह जैसा इल्म हुआ, और ये किसी को हासिल नहीं है। एक अलग अलग चीजें बताया, बहुत सारे मिसाल दिया कि कोई फलाना जगह है, मेरी बीमारी और खुशी गम हर चीज फलाना बंदा को पता चल रहा है। हाँ, तो ये अल्लाह जैसा इल्म हुआ, और ये शिर्क है। और कब कौन मरेगा ये गायब की बातें हैं, और कौन कहाँ मरेगा ये भी अल्लाह जैसा इल्म हुआ, किसी को पता चला तो। और आप जो बोल रहे हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को और उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह के नबी वही के जरिए से बता दिया, वही आने से पहले हमको ये बात बता दीजिए, और नबी से सवाल करके वही मंगवाना, ये कुफ्फार की आदत है। बनी इसराइल के बारे में, बनी इसराइल के बारे सुनिए, बनी इसराइल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें सूरह अहज़ाब की आयत है कि आई ईमान वालों, तुम मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल जैसा तकलीफ दिए वैसा तुम तकलीफ मत दो। इस आयत की तफसीर पढ़िए।
लेकिन बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल कैसे तकलीफ दिए, हर बात में सवाल इतना बढ़ा देते थे, बिला वजह सवाल करते थे। जो वही आई नहीं आती, वही आने से पहले वही का मुतालबा करना, कोई चीज ऐसी चीज जिसके बारे में अल्लाह का हकाम अभी आए नहीं हो, उसके बारे में सवाल करने का मतलब ये हुआ कि वही मुतालबा करना, और वही मुतालबा सहाबा इकराम नहीं करते थे, वही का मुतालबा कुफार करते थे कि हमारे बारे में क्यों आयत नाजिल नहीं हुई, हमारा नाम कुरान में क्यों नहीं आया, ये मुतालबा सहाबा इकराम नहीं किए। हाँ तो एक मिनट रुकिए जलालुद्दीन साहब, हम लोग इस्लाह की बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। देखिए सुनिए हजरत, आपने जो ये तकबीरतुल ईमान की इबारत पढ़ी, हाँ आप लोग बारी बारी सुनाते रहे, अब हम सुनते रहेंगे। नहीं आप सुनाइए, हम सुन रहे हैं आपकी, सुनने बोलिए सुन रहे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कहा कि तकबीरतुल ईमान की इबारत में ये लिखा है कि किसी के दिल के हाल को जान लेना। अगर किसी का ये अकीदा हो, किसी के दिल के हाल को, मैंने लिखा है भाई, ऊपर लिखा है तकबीरतुल ईमान में, ऊपर पूरी नफी की है उसने कि किसी के दिल को हाल को जान लेना, ये अल्लाह का इल्म, अल्लाह जैसा इल्म है। ठीक है, तो अब ये मुझे बताइए कि हुजूर, ये भी बुखारी की हदीस में पढ़ा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं तो देखा कि सहाबा इकराम का नमाज में दिल नहीं लग रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा और उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं सिर्फ आगे का देखता हूँ? खुदा की कसम, जिस तरीके से मैं आगे का देखता हूँ उस तरीके से पीछे भी देखता हूँ, और मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ। तो तुम्हारे दिल में क्या है, तो तुम्हारे दिल को हाल को भी जानता हूँ। तो ये तो अल्लाह का आता हुआ किया हुआ हो, ये तो अल्लाह के, ये तो अल्लाह की जैसा इल्म हो गया ना। आपका आलिम तो लिख रहा है आपकी किताब में कि किसी के दिल के हाल को जान लेना। अरे बात नहीं है। अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जैसा इल्म था, इसके कायल है आप? नहीं, अल्लाह जैसा इल्म नहीं यार, तो वही बात तो आप कर रहे हो। आपका आलिम लिख रहा है ना किसी के दिल के हाल को जान लेना, ये अल्लाह जैसा इल्म है, ये अल्लाह जैसा इल्म है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जैसा इल्म मानते हैं? माज़अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। आपका आलिम कह रहा है, हदीस को मानना ही पड़ेगा ना, ये हदीस नहीं मानना ही पड़ेगा, और हदीस को मानेंगे तो अल्लाह जैसा इल्म हो जाएगा। तो फिर आप अच्छा आप सुनिए, बताइए, आप अल्लाह के वसल्लम का इल्म अल्लाह के जैसा इल्म मानते हैं आप? माज़अल्लाह, मैंने ये आपका आलिम लिख रहा है, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। मतलब तो वही हो रहा है फिर। कहाँ, मैं आपका आलिम कह रहा है किसी के दिल को हाल के चाल को जान लेना अल्लाह जैसा इल्म, मतलब भी है दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। तो फिर आप तो अल्लाह के रसूल कैसे कह रहे हैं अल्लाह के रसूल की मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ? तो वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आपका अकीदा है ना, आप कह रहे ना कि अल्लाह अकबर। ये अच्छा, आप ये अगर आपके सामने ये हदीस मैंने पेश कर दी कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जान रहा हूँ, तो इस हदीस को आप कैसे लेंगे? चलिए बताइए, किसको, इस हदीस को कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे बताइए? हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, हम तो आपको क्या एक्सेप्ट किया था, क्या उतना यही, ये हदीस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा सहाबा की जमात से कि मैं तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ। आप इस हदीस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह ने अता किया, आप ये कहेंगे ना अल्लाह ने अता किया, कहेंगे कि नहीं? तो ये तो आपका आलिम कह रहा है कि जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ने भी अता किया हो तो भी शिरक है। तो अल्लाह हम तो इसके कायल ही नहीं है, हम इसके नहीं, आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं। सुनिए आप आगे मैं बताता हूँ, क्यों फंसे हुए हैं? नहीं, आपके सामने अगर ये हदीस पेश की मैंने, बात सुनेंगे आप? हाँ बताइए, बात सुनेंगे? हाँ बताइए। ईमान की जो बात है वो यहाँ पर यानी करके पूरा ऊपर की जो बात की थी उन्होंने, उसकी पूरी तशरीह, तो पूरी बात आपको पढ़नी पड़ेगी तब आपकी पूरी तशरीह शुरुआत यहाँ से हो रही है कि जिसका अकीदा ये हो कि वो मेरे सामने वाला मेरे दिल के हाल को जान रहा है, ये इल्म अल्लाह जैसा इल्म है। यानी करके जो तशरीह शुरू हो रही है, जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। आपका आलिम ही तो लिख रहा है ना कि जिसका अकीदा ये हो कि सामने वाले को दिल का हाल मालूम है, तो ये अल्लाह जैसा इल्म है। नहीं, हमारे आलिम सब ऐसा लिख नहीं रहे कि ये देख यार मौत लिखा हुआ है, कहाँ कब मरेगा
कौन आगे कौन कहाँ मरेगा, मौत ये है कि शुरू से मैं पढ़ के बताता हूँ। बीमारी, फराखी, तंगी, मौत, हया, गम व मसरत, इन सब को हर वक्त खबर रहती है। एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए, समझ में आएगी बात। सुनिए, हर वक्त खबर रहती है। दूसरी बात वहाँ तक जलालुद्दीन चिश्ती साहब, इनको बोलने दीजिए। इसके बाद में जो बात यानी करके बात शुरू हो रही, यानी करके बात जो शुरू हो रही है, वहां से तो पूरी आखिरी तक बात ये आपस में इनका सबका रब्त है। यानी अल्लाह ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, अल्लाह ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना। यानी किसी आगे की तस्वीर पढ़िए। यानी करके जमशेद भाई आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, मैं अभी बात मुकम्मल आखिर तक मैं बात करूंगा, आप खामोश रहे। यानी सुनिए अबू बकर साहब, जो यानी लफ्ज़ यानी होता है ना, आगे की तशरीह को, आगे की बात का खुलासा करने के लिए यानी यानी इस्तेमाल होता है। आगे जो जो कहा गया है उन बातों का यानी कह के खुलासा किया जा रहा है। यानी कह के नई बात नहीं करते। यानी का मतलब होता है आगे का माना, आगे का माना को ही यानी कहते हैं। तो यानी कह के नई बात नहीं कर रहे, आगे की बात को ही कहा जा रहा है। जो फराखी, किसी के फराखी तंगी के बारे में मालूम हो, या फिर मौत और हयात के बारे में, गम और मुसर्रत के बारे में हर वक्त खबर रहती हो, सारी बातें उसमें आ गई, सारी बातें आ गई। इन सब बातों को अगर कोई जानता है, जानने का दावा करता है, तो ये अल्लाह जैसा इल्म हुआ। और ये इल्म गायब, ये अल्लाह जैसा इल्म हुआ और ये इल्म गायब है। और ऐसा इल्म अगर किसी के लिए थोड़ा माने तो भी शिरक होगा, ज्यादा माने तो भी शिरक होगा, और अल्लाह का अता किया हुआ माने तो भी शिरक होगा, और खुद से माने तो भी शिरक होगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मानिए ये कहाँ लिखा हुआ है बताइए, तक़वियतुल ईमान में बताइए। थोड़ा माने तो भी शिरक होगा, ज्यादा मानेंगे भी तो शिरक होगा, ये कहाँ लिखा हुआ बता दीजिए। ये थोड़ा मानेंगे कहाँ लिखा हुआ है, तक़वियतुल ईमान में एक बार बता दीजिए, थोड़ा कहाँ लिखा हुआ है। ये इल्म देखिए, ये अकीदा रखना। नहीं आपने क्या कहा, आपने कहा भी थोड़ा, तो थोड़ा मुझे बता दीजिए कि थोड़ा इल्म भी मानना है तो शिरक है, ये बता दीजिए ना तक़वियतुल ईमान में मुझे आप। अल्लाह के इल्म में गायब अल्लाह की सिफात है, इल्म में गायब अल्लाह की सिफातें खासा है, नहीं है आपने क्या कहा सिफात, इल्म क्या है, इल्म में गायब अल्लाह की सिफात में थोड़ा शरीक होना क्या शिरक, थोड़ा शरीक होना अल्लाह की सिफात में, थोड़ा शरीक होना क्या शिरक नहीं। तो कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है तक़वियतुल ईमान में? ये कहा, ये तो उसूल है कि इस सिफात में, अल्लाह की सिफात में अगर बंदा थोड़ा शरीक है क्या हो सकता है अल्लाह की सिफात में? आप तो पहले ये कह रहे हैं अल्लाह की सिफातें खासा है और इसमें कोई जर्रा बराबर भी शरीक नहीं है। हम कहते हैं इबारत जो लिखी है उसको पढ़िए, आप इधर उधर मत जाइए। मैं कह रहा हूँ आपको यानी तक़वियतुल ईमान की जो बात है तो यहाँ से एकदम मुख्तसर लिखी है, यानी हक़ ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना, बिला शुबा इस अक़ीदे से इंसान मुशरिक हो जाता है। वो सही अक़ीदा किसी बड़े से बड़े इंसान के मुताबिक रखे या मुकर्रब से मुकर्रब फरिश्ते के बारे में, चाहे उनका ये इल्म जाती समझा जाए या अल्लाह का अता किया हुआ समझा जाए। तो जाती मानने से तो जाती या अताई मानने से मुशरिक हो जा रहा है। यहाँ तो अताई मानने से मुशरिक होता है। आप अगर बता रहे नबी को अल्लाह ने बताया तो नबी बता रहे हैं तो शिरक हो रहा है। फिर नबी अगर नबी को अल्लाह ने बताया, ये जो अल्लाह जैसा इल्म बताया जा रहा है, अल्लाह जैसा इल्म बताया जा रहा है, गम और खुशी और गम के बारे में दूर से जान लेना, किसी की हयात और मौत के बारे में जान लेना, ये सब जानने का अकीदा रखना शिरक है। और ये अगर ये अल्लाह जैसा इल्म हुआ माज़अल्लाह, और ये अगर जाती माने तो भी शिरक होगा, अताई माने तो भी शिरक होगा। तो आप यही तो समझ का फर्क है, तो आप समझिए तो अल्लाह ने बताया तो शिरक हो गया ना आपके हिसाब से। रुकिए, दोनों जने रुक जाइए, दोनों जने रुक जाइए। जाती समझा जाए या अल्लाह का अता किया वो समझा, आपको मसला यहाँ आता वाला यहाँ मसला आपका अटक रहा है ना। आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह का अता किया हुआ भी अगर समझ रहे हैं तब भी मुशरिक होंगे, आप ये कह रहे हैं ना।
یہ مسئلہ آپ لگ رہا ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے شروع یہاں سے یعنی سے بات جو بات شروع ہوئی یعنی سے لے کر بھائی جان سنیے، یہاں پہ صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے تو بھی مشرک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے عطا کیا، وحی کی قسمیں بتا رہے ہیں آپ. تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، چاہے وحی کے ذریعے کیا ہو یا آپ کے دل کے قلب میں اتارا ہو تو وحی کے ذریعے. تو آپ کے عالم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بھی یعنی عطا کیا ہو تو بھی مشرک ہے. تو یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ تو یہی تو غلط لکھا ہے نا آپ کے عالم نے. یہ تو آپ اپنے عالم سے پوچھیے نا، یہ آپ اپنے عالم سے پوچھیے ایسا کیوں لکھا اس نے. آپ سمجھے، آپ سنیں گے تو سمجھیں گے، وہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہاں سمجھنے کی بات ہی نہیں، یہاں تو صاف الفاظوں میں لکھا ہے انہوں نے. اور حضور کہہ رہے ہیں میں تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں. آپ وہ بات ادھر ادھر مت لیجیے. آپ کو مسئلہ ہے اچھا ایک بات بتائیے، سنیے بھائی میری بات سن لے رہے ہیں آپ. سنائیے، غصہ مت کریے، آرام سے بات کریے. ادھر ادھر مت بات لے جائیے. آپ کا مسئلہ تقویت ایمان پہ اٹکا ہے نا، اور تقویت ایمان کی بس آپ کی بات ہے یا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. آپ کا مسئلہ یہاں اٹک رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا عطا کیا ہوا آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ یہاں یہ بات آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ مان بھی رہے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے آپ مشرک ہو جا رہے ہیں. آپ کا مسئلہ یہی ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یعنی سے شروع ہوئی، یعنی تعالیٰ شان جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا. ٹھیک ہے، جیسا علم آپ مانتے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کے جیسا علم اللہ کے رسول کو ہے. ہاں تو ہم بھی نہیں مانتے. بس وہی. اب یہاں سے سنیے، یہاں سے ذاتی کی نفی ہو گئی. بھائی جان یہاں سے ذاتی کی نفی ہو گئی. اب آپ کا یہ تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، بتایا غیب کی باتیں، یہ تو آپ کو بتایا نا. اسی بات پر آ رہا ہوں. آپ سنیے، اسی بات پر آ رہا ہوں. اسی بات پر آ رہا ہوں. علم اللہ جیسا علم نہیں ہے، یہ نفی ہو گئی، اس کو چھوڑ دیجیے. اب یہاں پہ آپ کے جو عالم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں تو بھی مشرک ہے. چاہے اس کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے، اللہ کا عطا کیا ہوا سمجھا جائے، یا عطا کیا ہوا سمجھا جائے. ہاں اب سنیے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑ کے اس طرف ہے اور ابھی قربانی کی ہے، بقرعید کا موقع ہے. وہ بخاری میں مسلم میں. آپ سنیے نا میری بات تو سنیے نا بھائی جان سنیے تو ایک چھوٹی سی بات خبر کیجیے. میں نے اتنا آپ کو سن لیا. نہیں بس آپ اور اب بخاری لائیں گے، آپ بخاری کا حدیث لائیں گے. ارے تو بخاری نہیں لائیں گے کیا؟ اب یہی عقیدہ سنیے نا، سنیے. اللہ کے رسول صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے صحابہ کیا تم کو پتا ہے پہاڑ کی اس طرف کیا ہے؟ پتا ہے. تو اللہ کے رسول کے صحابہ کیا فرما رہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے. اللہ اور اس کا رسول جانے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی حدیث ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانے. یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے رسول جانے. نہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. صحابہ نے تو دونوں کو ایک کر دیا. تو بخاری شریف حدیث میں نے بھی پڑھی نا آپ کے سامنے. آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کہاں پڑھی آپ نے؟ آپ کے سامنے پڑھی حضرت عائشہ والی حدیث. تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا. امی عائشہ خود کل کی بات پوچھ رہی ہیں. تو پھر آپ اس کا جواب اس حدیث کو آپ کیسے قبول کریں؟ وہ جواب تو دیا میں نے آپ کو کہ یہاں سے ذاتی اور عطائی کی نفی ہو گئی. امی عائشہ کا یہ علم ہے کہ حضور کو عطائی علم غیب ہے، اور جو یہ کہے کہ ذاتی طور پر ہے اس کی منع کر رہی ہیں آپ. یہی چیز عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور یہاں سے جو صحابہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ پہاڑ کی اس طرف کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. تو آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے جیسا علم ہے، چاہے وہ عطائی کیا ہوا ہو تو بھی مشرک ہے. تو اللہ کے مطلب صحابہ بھی مشرک ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ کہہ لیجیے پوری بات، پھر میں اپنی بات کہوں گا. بھائی دیکھیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. آپ کے عالم نے کہا کہ اللہ جیسا علم، یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ جیسا علم حضور کو ہے. ٹھیک ہے، اس کی نفی ہو گئی، اس کو سائڈ کر دیجیے. اب آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ اللہ کی عطا سے بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی وہ مشرک سے خالی نہیں ہے. تو صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے رسول کو معلوم ہے. آپ کا عالم کہہ رہا ہے کہ عطا کرنے سے بھی مشرک ہو جائے گا بندہ.
دیکھیے میں آپ کو کسی عالم کے بارے میں کسی اس کے بارے میں آپ کو وہ نہیں کہتا. میں آپ کو ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور ہمارا دیوبند کا دیوبند کا جو فتویٰ ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہمارے دیوبند کا یہ فتویٰ ہم اس کو مانتے تو مطلب یہ شاہ اسماعیل دہلوی آپ کے دیوبند کا بانی نہیں ہے, خارج کر دیجیے اس کو. شاہ اسماعیل دہلوی آپ کا معتبر عالم نہیں ہے, خارج کر دیجیے اس کو. کس کو آپ ارے بھائی اتنی واضح عبارت ہے, سمپل عبارت ہے, آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. چلیے چھوڑ دیجیے اس بات کو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دیکھیے سنیے دیکھیے میں تو آپ تو مثال میں آپ کو ایک بات جو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو یہ اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک ہے, علماء دیوبند ان کا یہ ہمارا مسلک ہے, ہمارا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ غیب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کے علم کی بہت سی باتیں خبر کے حالات, جنت کے حالات, محشر کی اسی طرح دنیا کی وغیرہ کی پیشن گوئیاں پر مطلع فرما دیا تھا. مگر اس یہ عقیدہ کس کا ہے دیوبند میں, کس کا ہے, ذرا فتوا دیں گے مجھے. سنیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو آپ کے بتانے سے نہیں ہوگا نا آپ کا, پھر میں آپ کے معتبر عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی تو حوالہ دوں گا نا. میں آپ کو دیوبند کا فتوا دے رہا ہوں نا آپ کو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند نہیں تھے, دیوبند کا فتوا دے رہا ہوں نا آپ کو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بڑے ہیں آپ کے دیوبند کے فتوے. دیوبند بالکل ہمارے لیے ہر چیز دیوبند سے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے, جو آپ کے پیروں کے پیر ہیں, اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی کے جو پیروں کے پیر ہیں, جنہوں نے فیصلہ ہفتے مسئلہ کتاب کے اندر حضور کے علم غیب کو واضح کیا ہے, تو کیا آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے؟ ہم تو وہ سب ہم ان کی بات ہم جو مان رہے ہیں ہم دیوبند کی بات مانیں گے, اس کے علاوہ اور کی بات نہیں. مطلب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ نے الگ کر دیا اپنے دیوبند سے. ارے بھائی وہ دیوبند کے سرپرست ہیں, امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کے سرپرست ہیں. آپ ان کو دیوبند سے الگ کر دے رہے ہیں اپنے پیر کو ہی. اچھا رک جائیے بولنے دیجیے, بولنے دیجیے, بولیے حضرت. میں بہت دیر سے خاموشی سے سن رہا ہوں آپ دونوں کی باتیں, سب کی باتیں. بات اصل میں یہ ہے, آپ اپنے اکابرین کی جو جنہوں نے خلاف شرع قرآن و حدیث کے خلاف جو باتیں لکھی ان کو زبردستی ان کی وکالت کر رہے ہیں, اور جو سب سے ان کے بھی بڑے ہیں, جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, اشرف علی تھانوی کے, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, سب سے پیر ہے. مسئلہ میں سب مسئلہ واضح کر دیا ہے حق مسئلہ میں, کیونکہ اس وقت دیوبندیوں کا وجود نہیں تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی جو عقیدہ ہے سارے بریلوی والا عقیدہ ہے, کیونکہ ہمارا مسلک سب سے پرانا ہے. انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے, تو میں پڑھ دوں جناب. وہ ایک عبارت لکھتے ہیں, سنیے ادھر. ہاں آپ ان کی عبارت پڑھیں, ان کی عبارت پڑھیں, کسی اور کی عبارت لائے, اس کی عبارت لائے, تو اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم تو علماء دیوبند کو مانتے ہیں, دیوبند کے. یار یہ بتائیے مجھے, تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو آپ نہیں مانتے ہیں؟ بول دیجیے یار, مطلب یہ کیسا ماننا ہوا کہ ان کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانیں گے, یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے ہم جب فتویٰ دیوبند کا مان رہے ہیں تو پھر سبھی کو مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ سنیے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں. آپ کو فتویٰ دیوبند کا پڑھ کر سنا رہا ہوں. آپ دیوبند کا فتویٰ نمبر بتا دیجیے, فتویٰ نمبر لے لیجیے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. بتائیے, میں نکال لیتا ہوں. ارے بتا دیجیے, سوشل سائٹ پہ موجود ہے. فتویٰ نمبر بتا دیجیے. سر جواب نمبر ہے یہ 14,9002. 9002. ہاں پڑھیے کیا لکھا ہے. یہ سوال اور جواب لکھا, فتویٰ تھوڑی لکھا ہے. جواب, سوال اور جواب. سوال کیا ہے, سوال پڑھیے پہلے. سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اچھا, جواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی بہت سی باتوں پر مطلع فرما دیا تھا, مگر اس کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں پہ عالم الغیب کی بات ہو رہی ہے, علم غیب کی تو وہ رضامندی کر رہا ہے, اور آپ کا اشرف علی تھانوی علم غیب کا بھی انکار کر رہا ہے. عالم الغیب کی تو نفی کر دی اس نے, کہ عالم الغیب نہیں سمجھ آئی. وہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں. کون؟ وہ تو ہم بھی نہیں سمجھتے کہ حضور عالم الغیب ہے. ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہاں تو آپ کے تو یہاں پہ عالم الغیب کی نفی ہو رہا ہے, علم غیب کا کہاں عقیدہ بتایا اس نے؟ بتا رہا نا, آگے پڑھ رہا, آپ سنیں گے. آگے پڑھیے نا, آگے پڑھیے. علم غیب کلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے.
कुल्ली की बात हो रही है, कुल्ली की बात हो रही है, अताई की नहीं बात हो रही है। यहाँ पे कुल्ली लिखा हुआ है, कुल्ली। हाँ तो इल्मे गैब कुल्ली यानी आलिमुल गैब। सुनिए 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 बात सुनिए, इल्मे गैब कुल्ली यानी आलिमुल गैब खुद से जाती, ठीक है। अब सुनिए, जाती जाती मतलब अल्लाह का किसी का अता क्या बनी, अल्लाह की जाती। जाती और अताई अलग चीज है, कुल्ली और जुजी अलग चीज है, आप समझिए पहले बात को। अब मैंने कुल्ली अगर साबित कर दिया हदीस से तो कुल्ली साबित कर दी इल्मे गैब। अगर हुजूर को अल्लाह ने सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, हुजूर को अल्लाह ने मा काना वमा यकून का इल्म अता किया है के लिए साबित है। अरे बात सुनिए, हाँ मैं बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कुल्ली इल्म गैब अता किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका देवबंद का फतवा चला जाएगा फिर हदीस के आगे। दलील दीजिए आप। मैं दलील दे रहा हूँ, पहले आप हामी तो भरिए। अरे साबित तो करें आप, पहले हामी तो भरिए आप। क्या हामी भरे कि आपका ये देवबंद का फतवा, फिर आप लात मारेंगे इसको। लात क्यों मारेंगे भाई, जब हमारा देवबंद तो फिर आपको फिर बताने का क्या फायदा, हदीस के आगे आप अपने देवबंद के फतवे को आगे रखेंगे। सुनिए हदीस सुना देता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस सुना देता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अरे यार अब आप सुन नहीं रहे, अब नहीं सुन रहे आप, सुनाइए। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पे जलवा अफरोज हुए और वाज किया। जोहर का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, फिर वाज किया। असर का वक्त हो गया, फिर असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, फिर वाज किया। एक मिनट रुकिए, मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ हजरत जमशेद भाई, ठीक है, आप मैं म्यूट पे रख देता हूँ, आप लोग गुफ्तगू करते रहिए, ठीक है। फिर मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, फिर वाज किया, यहाँ तक के आफ्ताब गुरूब हो गया, मगरिब का वक्त हो गया। अब हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं कि इस बीच में मेरे नबी ने इब्तिदाए खल्क से लेके इब्तिदाए खल्क तक जो कुछ भी हो चुका और जो होने वाला है वो सब कुछ बता दिया, और जो इस हदीस को याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। यानी जो चीज हो चुकी वो भी मेरे नबी ने वाज कर दी, बता दी, और जो होने वाला है हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने क़यामत तक के मुनाफिकों के नाम बता दिए उसकी वल्दियत के साथ। हजरत उमर फारूक जब किसी जनाजे की नमाज को पढ़ाने जाते थे तो वो ये देखते थे कि हजरत हुज़ैफा उस मस्जिद नमाज में मौजूद है या नहीं होते थे तो आप नमाज नहीं पढ़ाते थे। हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल ने कसम दी थी कि किसी को बताना नहीं, और तमाम मुनाफिकों के नाम बता दिए थे, उसकी बल्दियत। अभी वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो बच्चा पेट में भी नहीं आया, अभी वो बच्चा वजूद में भी नहीं आया, और उसकी बल्दियत के साथ क़यामत तक के मुनाफिक के नाम बता दिए। और इब्तिदाए खल्क से लेके इब्तिदाए खल्क तक मेरे नबी ने सब बता दिया साहबा को, और साहबा फरमा रहे जिसने इस हदीस को याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। अब बताइए मुझे मा काना वमा यकून का माना क्या हुआ, इब्तिदाए खल्क से लेके इब्तिदाए खल्क तक? इससे इल्म गैब कुल्ली कहाँ साबित हुआ? ये क्या हुआ फिर? जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है क़यामत तक, यहाँ तक के जन्नती जन्नत में चले गए। सुनिए आगे हदीस के अल्फाज हैं, यहाँ तक के जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी अपने मुकाम पर पहुंच गए, जन्नती अपने मुकाम पर पहुंच गए। वहां तक मेरे नबी ने सब कुछ बता दिया इब्तिदाए खल्क से, जो कुछ हो चुका। सुनिए जो कुछ हो चुका, दुनिया बनने से पहले दुनिया बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इब्तिदाए खल्क तक की दुनिया में कौन कौन मुनाफिक आया, क़यामत हो गई, जन्नती जन्नत में चले गए, मेरे नबी ने ये भी बता दिया कौन कौन जन्नत में गया, मेरे नबी ने ये भी बता दिया कौन कौन दोज़ख में गया, और उसकी वल्दियत भी बता दी। फिर आप इन आयत का क्या जवाब देंगे? तो आप इस हदीस को कैसे लेंगे? आप इन आयत का जवाब कैसे देंगे? बस वही बात हो गई ना। तो मैंने वही आपसे अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे नबी को अल्लाह ने हर एक चीज बताई है। आपने बोला आप हदीस पेश करिए, और आपका आलिम लिख रहा है कि किसी का ये भी अकीदा हो कि मेरे नबी का जाती बताया हुआ अभी अल्लाह का अता किया हुई, तो वही मुशरिक है। आप ये कह रहे हैं, आप उसे इल्म गैब साबित कर रहे हैं, तो आप इन आयत का क्या जवाब देंगे? कौन सी आयत का पढ़िए, कौन सी आयत बताइए। तो इस आयत का क्या करेंगे? माल्ला का मालकुम तालम, मेरे नबी जो कुछ तुम नहीं जानते थे मैंने तुमको सब बता दिया। तो इस आयत का क्या, वो भाई इस आयत का क्या करेंगे? माल्ला का मालकुम तालम, मेरे नबी जो तुम ना जानते थे हमने आपको सब बता दिया। कहाँ है वो? सब कहाँ बता दिया? सब कहाँ साबित हुआ? ये क्या लिखा है इसमें?
कुरान की कई आयतें, कुरान अरे की इसका आयतें- अरे याद है यार इसका। अच्छा एक मिनट रुकिए, कुरान में हर एक चीज का इल्म है। सुनिए सुनिए सुनिए, कुरान में हर एक चीज का इल्म है। सुनिए भाईजान, मा अल्लमा कमा लकुम तालम, ऐ नबी आपको हमने वो सब बता दिया जो आप ना जानते थे। हाँ अच्छा आप बताइए, कुरान में हर एक चीज का इल्म है? ये हर खुश कुरान के अंदर हर एक चीज का इल्म है, हर खुश्क चीज, हर तर्क चीज, हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज, कयामत से लेकर के जमीन के अंदर, आसमान के ऊपर, हर एक चीज का इल्म है कि नहीं कुरान के अंदर? ये इन आयत का क्या जवाब देंगे आप, ये तो मुझे बताएं। पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप इसका क्या जवाब देंगे जो मैंने, ए नबी हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आप ना जानते थे? हम वही जवाब देंगे। क्या देंगे? और इस हदीस का क्या करेंगे बुखारी का कि इब्तिदाई खल्क से इब्तिदाई खल्क तक मेरे नबी ने सब बता दिया? हम तो वही जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने जितना इल्म दिया है आप कुछ नहीं जवाब देंगे, आप सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करेंगे। नहीं, नफ्स की पैरवी क्यों करेंगे? ये नफ्स की जो शैतान आपके अंदर घुसा है ना, उसी की पैरवी करेंगे आप। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, तो उसका जवाब तो दे दिया मैंने आपको, वो जवाब मैंने आपको दे दिया है नबी, वो जो ना जानते थे हमने सब बता दिया आपको, मा अल्लाह का मालकुम तालम सब बता दिया हमने आपको। ये कुरान की आयत से क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे आप? तो मतलब वो जाती है, आप जाती वसाई में नफी नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि हुजूर को खुद से, हुजूर तो कुरान में खुद फरमा रहे हैं कि मैं अगर खुद से इल्म गैब जान लेता तो बहुत सारी चीजों की नफी कर देता, बहुत भलाई कर देता। तो यहाँ तो खुद अल्लाह के रसूल ने नफी कर दी, लेकिन हदीस में आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों की खजाने अता की है। लेकिन इल्म गैब कुल्ली साबित थोड़ी हुआ उससे। तो कुल्ली कैसे साहब? अरे यार तो फिर अजीब आदमी है आप। इस हदीस का क्या करेंगे कि इब्तिदा खल्क से और इब्तिदा खल्क तक सहाबा फरमा रहे हैं, और सहाबा फरमा रहे अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, सहाबा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल पूछ रहे सवाल की पहाड़ के पीछे क्या है कि अल्लाह और उसका रसूल जाने। अजीब आदमी है आप यार। इल्म गैब कुल्ली कहाँ साबित हुआ उससे? तो मैंने आपको क्या किया, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अताई हर एक चीज का इल्म दिया है। आप कुरान सुनिए, कुरान में अल्लाह ताला ने हर एक चीज का इल्म रखा है, खुश तर्क, जमीन के नीचे आसमान के कोई ऐसी चीज नहीं है जो चीज छुपी हुई है कुरान के अंदर, हर एक चीज का इल्म है। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, कि रहमान ने कुरान सिखा दिया अपने हबीब को। तो अब सब कुछ तो सिखा दिया मेरे नबी को अल्लाह ने, अब आप कह रहे हैं कि ये नहीं जानते वो नहीं जानते। नहीं तो कुरान की आयतें बिल्कुल साफ है, वाज़ेह है कि भाई। तो ये क्या करेंगे रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इसका क्या करेंगे? मतलब एक आयत को पकड़ेंगे बाकी छोड़ देंगे, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इसका क्या करेंगे आप? एक आयत का बाकी बहुत सारी रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इसका क्या करेंगे? रहमान ने कुरान सिखा दिया अपने हबीब को, तो इसका क्या करेंगे? माल्ला का मालकुम तालम, इसका क्या करेंगे कि जो कुछ आप ना जानते थे हमने आपको सब बता दिया। तो फिर आप ने वो सहाबा को क्यों भेजा था वहाँ पर, जो जंग करने के लिए गए थे? एक आदमी आया था जाहिर, हाँ जो शहीद हो गए थे, सहाबा शहीद हो गए थे, उसका क्या करेंगे फिर आप? तो उसका क्या करेंगे? अल्लाह ने क्यों भेजा? फिर अल्लाह को फिर ब्लेम डाल देंगे आप कि अल्लाह ने शहीद करवा दिया। कौन? अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? अरे हाँ अल्लाह ने क्यों नहीं वही नाजिल की? अल्लाह ने क्यों? इसका मतलब अल्लाह को भी इल्म नहीं था। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वैसा देखा जाए तो फिर तो सारे, तो वैसा देखा जाए तो फिर नहीं वैसा देखा जाए, हाँ तो फिर अल्लाह ने सारे सहाबी को शहीद करवा दिया फिर। माज़अल्लाह। आपने बदला के लिए जब आपको, अरे यार आदमी हो क्या हो, तुमको पता होना चाहिए इस्लाम में सबसे बेहतरीन जो मौत है वो शहादत की है। तो अल्लाह ने उनकी किस्मत में शहादत लिखी थी, अल्लाह ने लिखी थी, लेकिन और अल्लाह के रसूल सुनिए, दुनिया से हर एक, सुनिए बात सुनिए, दुनिया से हर इंसान को जाना है। अब शहादत की मौत उनकी किस्मत में लिखी थी, अल्लाह ने लिखी थी, उसको कोई नहीं टाल सकता, और मौत बरहक है। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मालूम था, नबी अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, तो अपनी इजाजत से भेजा था या अल्लाह के हुक्म से भेजा था? किसके हुक्म से भेजा था? कौन? अल्लाह के रसूल ने उनको भेजा था, जो सहाबियों को भेजा था, अपनी मर्जी से भेजा था या अल्लाह के हुक्म से भेजा था? अपनी मर्जी से कैसे भेजेंगे? अल्लाह ताला के हुक्म से भेजा होगा। तो अल्लाह ने शहादत लिखी ना, तो आप अल्लाह पे ब्लेम डालिए कि अल्लाह ने शहीद करवा दिया। माज़अल्लाह, ये तुम्हारा अकीदा है यार। छी यार, कितने गंदे अकायद के इंसान हो यार। आप सुनिए हफ्ता फैसला हफ्ते मसला में, अरे सुनिए भाई,
भाईजान सुनिए नहीं सुनने के लिए तैयारी नहीं। आप भाईजान सुनिए, इसी चीज को आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरी ने नफी की है कि कुछ लोग, ध्यान से सुनिए इबारत उनकी, कुछ लोग अम्मी आयशा का जो हार गुम हो गया था उसको लेकर के ये इल्जाम लगाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म के गैब नहीं है, हालांकि इल्म गैब तवज्जो का नाम है। मेरे नबी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं की थी, और मेरे नबी ने तवज्जो ही नहीं की, तो इससे ये साबित नहीं होता कि नबी को इल्म गैब नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह को 30 पारे करने थे और अल्लाह के रसूल चाहते थे, अल्लाह के रसूल को मालूम था कि ये आयत नाजिल होगी, अल्लाह के रसूल ने सब्र किया और आयत नाजिल हुई। इससे ये अंदाजा ना लगाया जाए कि मेरे नबी को इल्म गैब नहीं था, अम्मी आयशा का हार चोरी हो गया। समझ गए? ये आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर, वही अकीदा आप बना के बैठे हो कि वो सहाबियों को भेज दिया तो अल्लाह के रसूल ने अपनी मर्जी से नहीं भेजा था, अल्लाह के कौल से भेजा था, अल्लाह का हुक्म से भेजा था। और मेरा नबी कोई काम खुद से नहीं करता, अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की मसलिहत होती है, और जो काम खुद से करता है तो उसमें भी अल्लाह की रजामंदी होती है। अब आपने ये अंदाजा लगा दिया तो मेरे नबी ने सहाबियों को भेज दिया तो वो शहीद हो गए, तो अल्लाह के रसूल अगर इल्म गैब जानते तो वो उनको रोक लेते। तो मेरे नबी ने क़यामत तक के मुनाफिकों के नाम बता दिए, उनकी मौत का जगह बता दी कि वो कैसे मरेंगे, वो मुनाफिक मरेंगे, वो कलमा नहीं पढ़ेंगे, वो माँ के पेट से पैदा होंगे और पूरी जिंदगी मुनाफिकत करते रहेंगे। मेरा नबी उनके बारे में बता रहा है हजरत हुज़ैफा को, और आप कह रहे हैं कि सहाबी के बारे में मालूम नहीं है। वाह, क्या है यार तुम्हारा अकीदा है यार। बिल्कुल आप मालूम होता आपको तो फिर आप नहीं भेजते। माशाल्लाह यार, इतना गंदा अकीदा है यार, अपने आप को मुसलमान कहते हो यार, छोड़ो यार, डूब के मरो यार, तुम रखो फोन यार, यार तुम्हारी जिंदगी पे यार तो बात करना बेकार है तुम लोगों के यार, इतना गंदा अकीदा लेके बैठे हो तुम, और अपने आलिमों के लिए सब कुछ मानते हो। एक मिनट अच्छा ये बताइए, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के रसूल को मालूम है? को मालूम था, फिर आपने भेजा, ये कहाँ लिखा है? अरे तो अभी तो तुमने बोला कि अल्लाह की अता से भेजा, अल्लाह के हुक्म से भेजा। नहीं तो ये आप बोल रहे हैं ना कि अल्लाह के रसूल को मालूम था फिर भी भेजा, तो आप ये बताइए ना, आप ये कह अरे यही अकीदा तो ये अकीदा तुमने बनाया ना कि अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था। आपने कहा, तुमने बोला अभी, सुनिए, आपने अभी बोला कि अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था, इल्म होता तो सहाबा को जाने नहीं देते, तो अल्लाह के हुक्म से सहाबा को भेजा अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह को तो मालूम था, अल्लाह को मालूम था, लेकिन अल्लाह के रसूल को मालूम था। अरे तो अल्लाह के और रसूल के हुक्म से तो शहीद हुए, अल्लाह और उसके रसूल के इजाजत से तो शहीद हुए। तभी तो सहाबा का यही तो अकीदा है, अल्लाह और उसका रसूल जाने। अरे भाई सहाबा का यही तो अकीदा है, तो सहाबा का यही तो अकीदा है ना, अल्लाह और उसका रसूल जाने। नहीं साहबा ने, आप बताइए ना, नबी को मालूम था फिर भी भेजा, ये बताइए ना आप कहाँ लिखा है? मेरे नबी को मालूम था लेकिन मेरे नबी को बताने का हुक्म नहीं था। कहाँ लिखा है? इसी हदीस से साबित हो रहा है कि अल्लाह के रसूल ने उनको भेजा। सुनिए, खामोश, सुनिए मेरी बात सुनिए। वो जैसे, अरे यार सुनते नहीं है आप लोग, सुनिए, सुनिए। सहाबा से मेरे नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें पता है इस पहाड़ के पीछे क्या है? बात पूरी होने दीजिए। मतलब जितने जंग में शहीद हुए अल्लाह ताला ने जानबूझ के सबको शहीद करवाया। यार घटिया अकीदा है तुम्हारा यार। आपसे पूछ रहा हूँ इस वाकई के बारे में, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को मालूम था, तो कहाँ लिखा है आप बता दीजिए। अब बता रहा हूँ, अब खामोशी से सुनिए, अब खामोशी से सुनिए, बोलूं? हाँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे सहाबा को लेके जाते थे तो क्या ऐलान करते थे? क्या करते थे ऐलान? वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, क्या ऐलान करते? अरे भाई वही बात, अल्लाह के रसूल जब जंग पे ले जाते थे सहाबा को तो क्या ऐलान करते थे? वो मुझे उससे कोई बहस ही नहीं है। वाह क्या बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि चलो अल्लाह के लिए जंग करो, शहादत अगर किसी की जान गई तो वो शहादत कहलाएगी, और शहादत शहीद का बहुत बड़ा मर्तबा। खामोश
सुनिए, खामोश आप रहिए। आप ये बताइए कि ये बताइए, सुनिए, मेरा नबी यार सुनने को राजी नहीं है तो क्या बताऊं मैं? नहीं नहीं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ये जहालत दिखा रहे हैं आप, ये जहालत दिखा रहे हैं आप, मेरी बात सुनिए आप। ये जहालत दिखा रहे हैं। अब आप जहालत पे आ गए क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आप ही जहालत दिखा रहे हैं भाई, बात सुनने हद के लिए हो गई तैयार यार। नहीं, आप अपनी सुनाइए 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 सुनाइए, बड़बड़ा लीजिए, बड़बड़ा लीजिए। ये आलिमाना अंदाज है, खामोश खामोश करके आप यानी ये अरे तो आप सुनने को राजी नहीं है, आप मुझे खामोश करें तो वालिम अंदाज है, बहुत बड़ा अंदाज है आपका। आप भी सुनने के लिए राजी नहीं है। हाँ सुनाइए। बात करते मैंने आपसे कुछ कहा, उसका जवाब दीजिए। आप वो सुनने के लिए तैयार? जवाब ही तो दे रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप दीजिए ना जवाब। हाँ जवाब दे रहा हूँ, खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सुनिए, दिल पे हाथ रख के सुनिए, खामोशी के साथ सुनिए, दिल पे हाथ रख के सुनिए। आपने ये सवाल किया कि जो सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल ने सहाबा को गैर कौम के साथ भेजा और वो वहाँ शहीद हो गए तो अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था, ये आपका सवाल है? अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था। एक मिनट फिर बोलने लगे बीच में। अरे भाई आप अल्लाह के रसूल, अरे तो सुनो तो सही भाई, ए भाई सुनो। आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था, ये हुआ आपका दावा। किसका दावा? आपका दावा कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था। दावे पे होती है दलील, आप दलील पेश करें कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था। किसका कॉल है ये? मैंने नहीं कहा, मैंने बुखार चढ़ गया, छूट गया बुखार। मतलब जो चीज कुरान हदीस में नहीं है कि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से ये आया नहीं, किसी सहाबी ने नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था, सहाबी शहीद हो गए, वो किसी सहाबी का कॉल नहीं है और आप अपनी तरफ से कुछ भी मनगढ़ंत चीज को बना देंगे। नहीं, मैंने तो आपसे मैं मनगढ़ंत किस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा को शहीद करवा दिया और अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं था कि वो शहीद हो जाएंगे? किस सहाबी का कॉल है ये तो आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह। अरे बेवकूफ आदमी, खामोशी सुनो, खामोशी नफी होती है हामी की, खामोशी हामी की नफी होती है। सहाबा ने खामोशी इख्तियार की तो इसका मतलब खामोशी का मतलब होता है सहाबा को मालूम था कि अल्लाह और उसके रसूल की मसलियत है। क्या तुम जाहिल जैसी बातें करते हो यार? सहाबा खामोश रहे, खामोशी किसकी नफी होती है? बताइए, खामोशी किसकी नफी होती है? खामोशी किसकी नफी होती है? सहाबा इकराम खामोश रहे, सहाबा इकराम ने सवाल नहीं किया कि अल्लाह के रसूल को सहाबी शहीद हो गया, आपने क्यों भेजा? आप जाहिल हो, आप उस चीज को उठा रहे हो, सहाबा ने नहीं उठाया। सहाबा ने, किसी सहाबी ने हुजूर से ये सवाल नहीं किया कि आपने उन सहाबी को उन गैर के साथ भेजा और वो शहीद हो गए तो आपको इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर, मतलब सहाबा से बढ़ के हो गए तुम लोग यार, जाहिल कौन कहे कहीं के, जाहिल